Welcome all of you on platform of YourPD Education. Today my this interaction is related to the use of technology to fight the problems prevailing in the society. You know, technology can provide the solution to various problems which we suffer and which we face in and around us. So my today's interaction is with one of the person who actually is industrialist, and he is dealing with the industries of boilers manufacturing, one of the largest boiler manufacturer in India, and he has stepped into something which might solve the problem which presently India is suffering from. So we will be discussing that how technology can solve the problems of the society. As it is said that necessity is the mother of invention. Whenever some need arises, then we think of the solution also. Now, as you know, because of the COVID, it's a testing time for India. COVID means so many people are dying. So our limited bottlenecks and limited infrastructure in India is exposed because of this. One of the example of that is crematoriums. We know that so many people are dying. Our crematoriums are flooded with dead bodies. People have even started throwing the dead bodies in the rivers. Now, what can be the solution for that? Some days back, there was one news published on the basis of the suggestion given by respectable Supreme Court, and it was related to that how we are burning the dead bodies that may be not hygienic, because if some person dies because of the virus, then burning the dead body in unscientific way can spread the virus further. It is polluting. The kind of burning we are doing, wood we are burning, it may be very polluting, it may not be efficient process. So Supreme Court suggested that can there be a better technological solution? Can we make our crematoriums high tech, something like what we observe in developed countries? Now these are some of the photographs which I will show you, which reflect the state of affair of such crematoriums in India. The kind of wood we are burning, the kind of gases emitted through this entire burning process. So this is certainly not what we call as the clean way or is the efficient way of disposing human body. You know, this is very polluting. The conventional, even developed conventional crematoriums lack lot of scientific things. They are not actually evolved the way scientific things should be there. Now, presently we are suffering from the shortage of wood and all. We are saying that wood बहुत ज़्यादा consume हो रहा है. It is very, very costly, which earlier we never thought of. So this testing time, as I told you, exposed the problems to us. So can we think of something scientific? Can we think of that with half of the wood burning, we can dispose of the body? And can we, let's say, burn 2 or 3 dead bodies per day on one particular, I'll say the crematorium? So can we do that? So the typical collaboration of IIT Ropar with Chima Boilers Limited, that is the industry academia interaction. So Chima Boilers along with IIT Ropar came out with what they call it a noble cause machine, a noble cause, basically the name given to it, something like scientific machine to burn the dead bodies, and that is supposed to be quite efficient because of the air circulation. You know, I interacted with the MD of Chima Boilers and came to know about various scientific principles behind creation of this machine. So presently this is the state of affair, and this is what is proposed through this noble cause machine. The details of this soon you will listen in the videos, small video by Mr. Chima himself, and then my interaction with him. So what are the main differences between conventional and noble cause the new machine made? Let me brief you. Because of the very good circulation of the air,
and efficient burning, there are a couple of advantages in this compared to this conventional way. Advantages are less wood, almost half wood consumption, less time because of very high temperature attained because of prevention of the loss of heat energy, and it is a very portable device, can be moved around, so that also flexibility is there. We will listen to that in the interaction which we are going to have now. This basically, we always think of like there are electrical crematoriums also. Whenever we go to crematorium, we'll find electrical crematorium. During the interaction, I asked Chairman Mr. Chima, like, why we are not going for electrical crematorium. You know, the answer he gave is very interesting. On the basis of his experience, he said that people do not go for electrical crematorium to the dead bodies because they think murde ko bijli lag jayegi. You know, that is a Hindi phrase. That means there are some taboos, societal taboos, and we believe that as community, wood burning is required. So community goes for wood burning in India. And if you go for that, you do not accept electrical cremation, and which actually is infrastructure is also not available in India. You cannot expect electrical crematorium to be in each nook and corner of India, in the villages, remote areas. You cannot have where electricity is not there, especially, and they are costly also. So this is the solution which we can think of at this particular testing time, and it can be made permanently later on. Once COVID goes, then we can make, as Supreme Court advised, it can be made, crematoriums can be made quite high tech and preventing all this kind of pollution. So let's now listen to small video which I'm attaching here about this machine, and then interaction with Mr. Chima himself. चीमा बॉयलर्स लिमिटेड और IIT रोपड़ ने मिलके एक नई इन्वेंशन की है। इसका नाम है नोबल कॉज। इसमें ह्यूमन बॉडी को सही तरीके से जलाया जाता है। इसके अंदर मेन जो ध्यान है वो हवा का रखा गया है। नीचे से प्राइमरी आती है, प्राइमरी एयर, और साइडों से सेकेंडरी एयर आती है, जैसे पुराने ज़माने में बत्तियों वाले स्टोव में होता था। इससे बिल्कुल ब्लू कलर की फ्लेम आएगी और काफ़ी अच्छी तरीके से बॉडी का जो डिस्पोजल होगा। और ख़ास करके आजकल जैसे कि कोविड का चल रहा है दौर, तो उसमें हमें एक पर्टिकुलर हाई टेम्परेचर पे बॉडी को डिस्पोज ऑफ करना बहुत ज़रूरी है। वो सारी चीज़ों का ध्यान इस डिज़ाइन में रखा गया है, और मैं ये चाहता हूँ कि भारत के हर गांव में ये चीज़ पहुँचे। बंदा एक बार हाथ लगाया जरा विशाल जी, और ये देखो जी, इतनी इंसुलेशन का इफेक्ट है। बाहर से आदमी हाथ कर लगा रखता, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है जी, थैंक यू जी। लुक एट द कलर, लुक एट द कंबस्शन, लुक एट द टेम्परेचर। दिस इज व्हाट इज टेक्नोलॉजी। वी हैव यूज्ड ओनली हाफ वुड। वी ब्रॉट 500 kgs and we used only 250 kgs. Look at the color of flame. This is called combustion. This is job of combustion engineers. गुड इवनिंग चीमा सर, एंड थैंक्स अ लॉट सर। आज आपने टाइम दिया मेरे को मेरे चैनल पे आने के लिए। आई एम रियली थैंकफुल सर। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक्स अ लॉट। ओके चीमा सर, आप इंडिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट बॉयलर मैन्युफैक्चरर हैं, और मेरे को पहले भी एक बार अपॉर्चुनिटी मिली थी सर आपके साथ इंटरेक्ट करने की, और इस बार मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूं क्योंकि इस बार सर आपकी कंपनी ने, चीमा बॉयलर्स ने, एक प्रोडक्ट बनाया है जो बहुत ही रिक्वायर्ड है इस टाइम पे। और जैसे बोलते हैं सर, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। उसी तरीके से जैसे हम देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर कोविड के चलते बहुत सी डेथ्स हो रही हैं, और उसमें सर क्रीमेटोरियम ओवरफ्लड हो चुके हैं, और डेड बॉडीज को लोग अब तो उन्होंने गंगा वगैरह में भी, जैसे हम सुनते हैं, डालना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज लकड़ी नहीं मिल रही है, वुड नहीं मिल रहा है, और क्रीमेशन नहीं हो पा रहा है। तो सर उसी को देखते हुए आपने अलोंग विद IIT रोपड़
आपकी कंपनी ने आईआईटी रोपड़ के साथ मिलकर एक मशीन बनाई है जिसका नाम आपने नोबल कॉज रखा है। और ये मशीन सर, आपने इस मशीन में क्लेम किया है, मैं आप पीपीटी में ऑलरेडी दिखा चुका हूं, आपने क्लेम किया है कि ये कम वुड यूज करके खर्चा इसमें कम होगा और कम टाइम में इसमें क्रीमेशन किया जा सकता है। तो मेरी ये इंटरेक्शन जो है सर उसी डायरेक्शन में है। मैं कुछ पॉइंट्स आपसे पूछूंगा बड़े स्ट्रेट, और जैसा आप बहुत स्ट्रेट आंसर भी करते हैं सर, पिछली इंटरेक्शन में हमने देखा था, तो ये इंटरेक्शन सारा उसी डायरेक्शन में रहेगा। एंड थैंक्स फॉर ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है जी, प्लीज। ओके, मेरा पहला सर क्वेश्चन ये है कि नोबल कॉज के बारे में वैसे तो मैं बता चुका हूं, जो आपका पीपीटी है आपने मेरे को शेयर किया था, लेकिन सर मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने इसमें क्लेम किया है कि स्मोकलेस है। एक तो स्मोक की प्रॉब्लम खत्म होगी, दूसरा इसमें जो फ्लेम और विंड, जो फ्लो ऑफ एयर, और जो टेक्नोलॉजी आपने बात किया था फ्लो ऑफ एयर के साथ और एक फ्लेम का कलर के साथ आपने इसका लिंक बताया था, वो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये क्या कन्वेंशनल जो चीज है उससे कैसे अलग है। एक्चुअली सर ऐसा है कि हम लोग स्टीम बॉयलर्स बनाते हैं और कंबस्चन हमारा मेन सब्जेक्ट है। राइट सर। क्योंकि बॉयलर के लिए हमने उसके अंदर कंबस्चन, और हमारे पास करीब 400 इंजीनियर काम करता है, उसमें काफी ज्यादा कंबस्चन के हैं। तो कंबस्चन के एक्सपर्ट होने के नाते जब भी मैं फायर वगैरह देखता हूँ या डेड बॉडीज जलती देखता हूँ कन्वेंशन ग्राउंड में, तो मुझे उसको देख के बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि कंबस्चन के लिए हमको क्या चाहिए होता है? प्रोडक्ट, टेम्परेचर और एयर। राइट सर। प्रोडक्ट, टेम्परेचर और एयर, 3 चीज चाहिए होते उसके लिए, कंबस्चन के लिए। अब हमारे जो हम कन्वेंशनली 2 लकड़ियां गाड़ के, बीच में लकड़ियां रख के, बीच में बॉडी रख के उसको आग लगा देते हैं, तो पहली बात तो उसमें एयर का कोई प्रॉपर सिस्टम है ही नहीं। हमारी भाषा में जो नीचे से हवा दी जाती है उसको प्राइमरी एयर कहते हैं, और जो लकड़ी को हीट करने के बाद हवा दी जाती है उसको सेकेंडरी एयर कहते हैं। सही है। उस सिस्टम में ऐसा कुछ है ही नहीं। तो इसी चीज को मैंने करके के आईआईटी रोपड़ के साथ, उनके इंजीनियर्स के साथ, डॉक्टर के साथ मिलकर के हमने ये ऐसी डिवाइस बनाई है कि इसमें नीचे जो बार्स लगी हैं वो डायगोनल लगी हैं। डायगोनल लगने से राखी इजीली नीचे को फ्लो हो जाती है, और नीचे से जो, जिसे हम प्राइमरी एयर कहते हैं, जो कि वुड के अंदर फिक्स कार्बन होता है, उसको जलाने के लिए काम आती है, वो आ जाती है। और साइडों में हमने स्टेनलेस स्टील की 2 प्लेटों के बीच में गैप रखा हुआ। राइट सर। उस गैप से नीचे से हवा आती है, और वो पहले हवा गर्म होती है। वो करीब 30 डिग्री की नॉर्मल हवा जो है करीब 200 डिग्री हीट हो जाती है, क्योंकि अंदर 1200 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, तो कुछ ही सेकंड में वो हीट हो जाती है। फिर वो हीट होने से उसका एरिया भी बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है एयर का। फिर वो सेकेंडरी एयर आकर के, गर्म सेकेंडरी एयर करीब 200 डिग्री सेल्सियस पे वो वॉलेटाइल मैटर को लकड़ी के जलाती है। इसी से टेम्परेचर हमारा जो है 1050 वगैरह या 1100 तक पहुंचता है। तो बेसिकली थ्योरी जो है कंबस्चन की है। राइट सर। तो मतलब आपने कंबस्चन को ज्यादा एफिशिएंट बना दिया है। जी, 100% कंबस्चन एफिशिएंट है। दूसरी बात है कि उसके अंदर हमने इंसुलेशन लगा रखी है। आपने वीडियो में देखा होगा, बंदा बाहर हाथ लगा रहा है। राइट सर। क्योंकि बाहर का टेम्परेचर एम्बिएंट प्लस 10-15 डिग्री रहता है। अब किसी भी फायर में जाके पास खड़े होकर दिखा दीजिए हाथ लगाना, तो दूर की बात है। अच्छा चीमा सर, आपने क्लेम किया है कि आपने उसमें मेटल यूज किया है, स्टील यूज किया है। उसकी डिफरेंट किस्म की स्टेनलेस स्टील है, क्योंकि आईआईटी रोपड़ इन्वॉल्व है। तो जो अंदर की प्लेटें हैं, जहाँ पे ब्लड स्टेन की, बायोलॉजिकल वेस्ट की पॉसिबिलिटी है, वहां पे डिफरेंट ग्रेड लगा है। उसके बाद में जहाँ पे हाई टेम्परेचर एक्सपेंशन होनी है और हाई टेम्परेचर को स्टैंड करना है, वहाँ डिफरेंट स्टेनलेस स्टील लगी है। और बाहर जो लुक के लिए है वो डिफरेंट स्टेनलेस स्टील है, और नीचे जो ट्रे है वो भी स्टेनलेस स्टील। लेकिन हर जगह पे डिफरेंट डिफरेंट ड्यूटी की स्टेनलेस स्टील है, जो वहां पे चाहिए इंजीनियरिंग के हिसाब से। आपने एक वीडियो में सर एक पॉइंट भी बोला है कि जो नॉर्मल कन्वेंशनल होते हैं उसमें रिफ्रैक्टरी लगा होता है, जिसको ठंडा होने में बहुत टाइम लगता है। तो क्या ये भी रीजन है कि स्टील? बिल्कुल बिल्कुल। जितनी इलेक्ट्रिकल है या डीजल फायर्ड है, या जो पायर्स ये लोग बनाते हैं पायर्स, उसके अंदर वो रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स यूज करते हैं। रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स जो है वो अंदर अपने अंदर हीट को स्टोर करती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आप इलेक्ट्रिकल क्रेमेटेरियम में जाइए या डीजल वाले में जाइए, तो पहले 1 आधा घंटा उनको हीट करना पड़ता है रिफ्रैक्टरी को। उसके बाद जब टेम्परेचर 1000, 1100, 1200 हो जाता है, फिर वो बॉडी को प्लेस करते हैं। हमारे केस में वो हमने रिफ्रैक्टरी लगाई ही नहीं। ओके। ताकि उसको ना हीट, इसलिए हमारे यहाँ स्टोरेज नहीं है, इसीलिए हमारा कूलिंग टाइम कम है।
ओके अच्छा चीमा सर, मैं कई बार क्रीमेटोरियम में मैंने देखा है कि वहां पे इलेक्ट्रिक क्रीमेटोरियम की भी फैसिलिटी होती है, और जहां तक मैंने पढ़ा है कि वो फास्ट कर देता है क्रीमेशन को। वो बहुत ही अच्छा है, उसमें 15-20 मिनट में सारी कम्युनिकेशन खत्म हो जाती है। लेकिन हमारे सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती, लोग समझते हैं कि इसको हमारे मुर्दे को बिजली लग जाएगी, इसीलिए वो 10 साल से लगा हुआ है हर जगह, लेकिन फिर भी नहीं कामयाब हो रहा। ओके इसका कोई इलाज ही नहीं है, क्योंकि 140 करोड़ जनता किस किस को समझा लो। हाँ सही बात लेकिन है। हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, हमने बिल्कुल कन्वेंशनल रखी है चीज। आपने मतलब उसको सोसाइटी के हिसाब से बिल्कुल नहीं छेड़ा है, एग्जैक्टली, जैसा है सोसाइटी को वैसा जो ही। चाहिए वही है। हमें ज्यादा सोसाइटी को बदलना नहीं है, और ना ही हम बदल सकते। हाँ सही है सर। अच्छा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा हूँ सर, कि वैसे तो आपने एडवांटेज बता ही दिया है कन्वेंशनल, जी और इसका कंपैरिजन आपने किया है। एक जी जगह आप बता भी रहे हैं कि सर टेम्परेचर 1000 से ऊपर है, वो दिखाया भी है आपने, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर जी बन जी जाता जी है। जी जी और जी। आपने एक जगह ये भी बोला है सर कि 500 किलोग्राम लकड़ी हम लाए लेकिन 250 किलोग्राम हमने हाँ यूज जी, किया। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये सर, ये जो डाटा है कि इतना किलोग्राम लकड़ी लगती है और इतनी ही आपके लग जाएगी, क्योंकि मेरे ख्याल से अभी तक कोई भी क्रीमेशन का टेस्ट आपने नहीं किया नहीं, सर। क्रिमिनेशन टेस्ट तो चलो हो ही जाएगा मैदान जंग, लेकिन जब हमने आपको बंदे के हाथ लगा के दिखा दिया, हाँ जी। तो उससे ये तो श्योर हो गया कि ना हीट की वेस्टेज नहीं हो रही, हाँ वो तो सही है सर। और कंबस्चन भी आपको दिखा दिया, आगे का रंग भी आपको दिखा दिया। राइट और सर। जो लकड़ी 250 किलो से हमारा पूरी हीट हो गई, पूरा कोयला बन गया, और 2-2.5 घंटे जल गया, तो उसमें बचेगा क्या? हाँ सही है, तो अभी वैसा आपने बाकी करके मैदान जंग दिखाया। चेक हो जाएगा, हाँ सही है सर। देखी जाएगी। दैट इज करेक्ट। अगर उतनी भी लग जाए तो भी क्या कम है यार, वैसे तो हाँ लगनी नहीं है, हाँ किसी सही हालत है। में भी लगनी, आधी लगनी है। अच्छा सर, इसमें कितनी बॉडीज क्रीमेशन हो सकता है पर डे? सर 1 at a टाइम, क्योंकि देखो ये सेंसिटिव इशू है, हर बंदे बॉडी वाले को अपने जो बैलेंस है वो राखी है वो निकालनी होती है, इसलिए एट ए टाइम एक ही बॉडी होगी। 12 घंटे में कंडीशन कंप्लीट हो जाएगा, उसकी एशेज निकल जाएंगी, वो अपना एशेज ले जाए, दूसरी बॉडी रखो, दोबारा रेस्ट कर लो। ओके, तो मतलब 24 आवर्स में अगर देखा जाए, थ्योरेटिकली हाँ अगर देखा जाए, तो हाँ, दो 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 तो body- आराम से हो जाएगी। दो हो जाएंगे। ओके। अच्छा सर, इस जो मशीन आप बनाई है उसकी लाइफ कितनी हो सकती है अगर कोई खरीदता है, इन्वेस्ट देखिए करता है? ऐसा है कि हम लोग बॉयलर बनाते हैं, हाँ जी। 20-25 साल की लाइफ होती है मशीन की। ओके। अगर इसमें हमने तो 10 साल सोच के लाइफ बनाई है, अगर इसमें कोई कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी, कोई पुर्जा खराब होता है, जाली खराब होती है, जलती है, तो कंपनी पीछे हम स्पेयर देंगे ना। ओके। कोई ग्रेड बार टूटती, कंपनी पीछे हम स्पेयर देंगे, बॉयलर भी तो चल रहे हैं। राइट सर। ये तो है नहीं कि आपने फुटपाथ से उठाई है, लिमिटेड कंपनी से माल ले रहे हो, सही। बैकअप आपको पूरी मिलेगी, इंजीनियरिंग है पीछे। ओके ओके ओके। अच्छा ये तो चीमा सवाल सर, ही नहीं। ये जो आपने अभी बनाया है, मशीन बनाई है, ये अभी ये मार्केट में इसका इनिशिएट करेंगे आप सारे के सारे एक्टिविटीज इसका, लेकिन जी सर जी जी इसमें मेरे को ये बताइए कि जैसे स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट हर चीज में होता है, तो जी अभी जी, अभी तक जो आपने समझा होगा उसके हिसाब से बहुत अच्छा आपने बनाया है मशीन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आगे क्या लगता है आपको, किस डायरेक्शन में इम्प्रूवमेंट का हम स्कोप? 10-20 अभी डालेंगे मार्केट में, 10-20-50 डाल के, अगर उसमें से कोई भी प्रॉब्लम आएगी उसको रिकॉल करके, रिपेयर करके, चेक करके फिर देंगे। ओके। हमने 1 साल की तो हम वारंटी ले रहे हैं, 1 साल तक कहीं कुछ होगी खराबी, उसको वापस लाके दूसरी नहीं दे देंगे, कोई इशू नहीं है हमारा। हम तो सोसाइटी का काम, हमने कोई ये 2-2 लाख की मशीन थोड़े ना बेचनी, हमारा ये हमारा 20-20 करोड़ का एक बॉयलर बेचता है, हम क्यों 2 लाख की मशीन बेचे? ये मेरा तो हम नेक्स्ट सिर्फ सोसाइटी के लिए कर रहे हैं। हाँ सही है सर। मेरा मेरा नेक्स्ट पॉइंट इनफैक्ट वही था कि जी आपका जो बॉयलर जी, का, जो मैं जानता हूँ वो 2 करोड़ से आपकी कॉस्ट स्टार्ट होती है बॉयलर की। हाँ, तो सर बिल्कुल बिल्कुल, ये 20-20 जो आप करोड़ तक जाती है। हाँ, ये जो मशीन आपने बनाई सर, इसकी क्या कॉस्ट होगी अगर ये करीब 2 लाख रुपए कॉस्ट करता है, बाकी डिपेंड करता है भी कौन सा एरिया है, कितना जाना है ना, और इसके ऊपर आज प्रेजेंट डेट में 18% टैक्स है। अच्छा इसमें सर हमें ये बताइए आप कि आपने एक विजन सा शेयर किया था उसमें कि हर विलेज में आप चाहते हैं ये चीज पहुंचे, तो उसके लिए आपको क्या लगता है आपको कैसे पहुंच सकता है? एक्चुअली इसको एनजीओ और पंचायती राज वाले ही लेंगे, क्योंकि अच्छा। जो भी अभी हमारे पास कर रहे हैं वही लोग बात कर रहे हैं। तो अभी देखो कैसा है कि गाँव के अंदर जो प्रधान है उसने 1.5 लाख का बुलेट अपने लड़के को लेके दिया हुआ है, तो क्या वो 2 लाख की मशीन कार्ड नहीं खरीद के डाल सकता गाँव में? सही है। बराबर डाल सकता है। वो तो सोसाइटी के लिए काम करने की इच्छा होनी चाहिए बस। सही है सर। कुछ भी कॉस्ट नहीं है इसकी, और इसकी तो लकड़ी से ही पैसा वापस आ जाएगा। एंड आई एम श्योर आप इसमें से को अर्न करने की नहीं सोच रहे होंगे, बिकॉज ना ना, हमारा एक बॉयलर बेचेंगे, ये इसमें क्यों अर्न करना है, और क्या अर्न कर लेंगे यार। सही बात है सर।
हमारी कंपनी के मेरे को कहती है तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना ये छोटी छोटी चीज बेच के। राइट सर। अच्छा सर, मैंने तो सोसाइटी के लिए कुछ करना है मेरे ख्याल से। जी मैं सर, एक आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि जो क्रिमेटोरियम इंडिया में होते हैं बड़े ही वो सिक्लूडेड सी अकेली सी जगह पे होते हैं, तो ये जो मशीन बना रहे हैं सर, इसकी मेंटेनेंस वाला पार्ट। एक्चुअली जो मेरा अल्टीमेट इंटरेस्ट है, मैं तो चाहता ही नहीं कि क्रिमिनेशन ग्राउंड हो। हाँ जी। ये तो किसी की जो भी प्रधान प्रदून है एट द एंड वो अपने गैराज में इसको पार्क करके रख सकता है, और जिसके घर में कोई इंसिडेंट होता है उसके घर में ले जाके भी क्रिमिनेशन की जा सकती है। पर चलो, क्योंकि अब क्रिमिनेशन ग्राउंड बने हुए हैं तो उसी ग्राउंड में अच्छा सा हॉल बनाएं और साइड में एक छोटा सा गैराज बनाएं, एक या दो जितनी मशीनें चाहिए उतनी उस गैराज में रख दें, बाहर से लॉक कर दें, जिस दिन जरूरत पड़े वहां से निकालें, आराम से बैठे, क्रिमिनेशन खत्म करें, उसके बाद लॉक करें और चलें। अल्टीमेटली तो मैं चाहता हूँ कि इंडिया के भी क्रिमिनेशन ग्राउंड जो है वो बाहर जैसे हो यार, क्यों ना हो। बाहर जाके देखो, एयर कंडीशनड होते हैं और यहाँ सबसे गंदे होते हैं, और हर बंदे को जाना है उसको, इंक्लूडिंग हाईएस्ट मिनिस्टर, एवरीबॉडी। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत सा रिमोट एरिया खड्डों के किनारे, वो रिक्वायरमेंट नहीं है। खड्डे खुड्डे तो मछुआरों की मजबूरी है, जब मशीन ही नहीं है तो क्या करें। सही है सर। जब मशीन आएगी और स्टेनलेस स्टील की होगी तो अपने आप अच्छी जगह पे रखेंगे ना उसको। राइट सर, राइट। वो तो जैसी चीज होगी वैसी पार्किंग करोगे। सही है सर। बैलगाड़ी लाओगे तो बाहर खड़ी कर दोगे, मारुति लाओगे तो अंदर खड़ी करोगे। राइट सर। चीमा सर, आई थिंक मेरे को जो क्वेश्चंस थे, मैंने आपसे जो स्टेट पूछने थे सर, मेरे सारे क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस कर लिए। थोड़ी ज्यादा देसी भाषा में बोल रहा हूँ मैं। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। दिस इज वेरी वेरी राइटली, आपने बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं, और सुनने वाले भी बड़ी देशी भाषा में ही सुनना चाहेंगे सर। सारे जो लोग हैं वो आपकी तरफ से जो पॉइंट आपने किया है, ये एक्चुअल में बहुत अच्छा पॉइंट था। जब मैंने इसको न्यूज़पेपर में पढ़ा तो मेरे को लगा कि नहीं, आई शुड इंटरेक्ट विद यू, एंड मेरे को पता करना चाहिए कि क्या इसके पीछे। हाँ जी। और इसको सर मैं आपसे आगे फिर से कांटेक्ट करूंगा, क्योंकि कुछ मंथ्स के बाद इसका फिर से रिव्यू करेंगे कि कैसा इसका रहा। बिल्कुल बिल्कुल कैसा है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो रिक्वायर्ड है सर, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में रिक्वायर्ड है, और अगर ऐसा होता है तो दैट विल वेरी गुड। थैंक्स अ लॉट चीमा सर। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू एवरीबॉडी, ऑल द व्यूअर्स।